हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के इस सेशन में हम लोग इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो एक्चुअली व्हाट आर द इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा। हम लोग जावा में इटरेशन यूज़ क्यों करते हैं? वी यूज़ इटरेटिव कंस्ट्रक्ट इन जावा व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट और प्रिंट और डू एनी ऑपरेशन repeatedly based on any condition. Whenever किसी भी ऑपरेशन को हम लोग अभी भी अगर रिपीटेड वे में अगर परफॉर्म करना है किसी कंडीशन के बेसिस पर, तो इन दिस केस वी यूज इटरेटिव कंस्ट्रक्ट. ओके, this is the main reason why we use iterative construct. It is also called as iteration or looping, because we iterate means we perform several times given condition repeatedly, or we loop through that statement many number of times. In Java, iteration is done through loops. Okay, in Java, iteration is done through loops. Loops are nothing but predefined functions और statements जिनसे हम उनके अंदर के स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली सॉल्व करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे. एंड जावा में सिर्फ 3 तरह के लूप्स यूज होते हैं. First one is the for loop. The second one is while loop, and the third one is do while loop. These 3 loops are the only loops which are used in Java. So before that, let's see the elements that are used inside all these loops. इस लूप के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? द फर्स्ट एलिमेंट इज इनिशियलाइजेशन और वी कैन से इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन. द फर्स्ट एंड foremost element that is used in loop is initialization expression. What we do, we initialize the control variable. Initialize means by any value, by a value, or we can say by a initial value. And this part is important while creating a loop. Initialization is must, जिससे हम लोगों का जो भी कंट्रोल वेरिएबल होगा उसमें कुछ इनिशियल वैल्यू हम लोग पुट करते हैं. ओके, एंड second thing, it is executed only once. Okay, this initialization expression is executed only once, and when it is done, when the loop starts. These are 2 important points about the first element, which is the initialization expression, in which we initialize the variable by initial value and it is executed only once, and that is when the loop starts. The second one, which is called the test expression, or we can also say that at the condition or conditional expression. Okay, so text expression means condition. It contains the condition based on which the loop executes. इससे लूप में हम क्या करते हैं, हम किसी ऑपरेशन को बार बार परफॉर्म करते हैं किसी कंडीशन के बेस पर. दैट्स द कंडीशन. ओके,
the loop executes repeatedly based on the condition expression or based on the test expression. How it happens कि कंडीशन है तो it will either be true or false. So when text expression is true, okay, when text expression is true, the body of the loop gets executed and when the text expression is false, तो इस केस में क्या होता है, हम लूप के बाहर आ जाते हैं. मीन्स द कंट्रोल इज टेकन आउट ऑफ द लूप. Okay, so in a way we can say that test expression controls the loop. This test expression will control the loop because until the text expression is true, जब तक text expression true होगा loop की body execute होगी, and when we get the text expression value as false, the control is taken out of the loop, so it controls the loop. The third element which is used in the loop is the update expression. So what does an update expression do? The control variable means initialization में क्या किए थे, we initialize the control variable by the initial value. So in update expression we update the control variable. Which means we change the value of the control variable. And the last part means the last element which is used in the loop is the body of the loop. The fourth part, the fourth element, it is the body of the loop. This is actually the part of the loop or the statements inside the loop which are executed repeatedly as long as the condition is true. This is the part of the loop. And this is a collection of statements, or we can say sequence of statements which are executed repeatedly until the test expression becomes false. Okay, so from all these 4 points means initialization expression, text expression, then the update expression and body of the loop, we can now deduce how many number of times they are executed. The first one, initialization, it is executed only once at the beginning. At the beginning of the loop,
the first part. Then the second part was the test expression. It is executed until its result is false. Means it is executed repeatedly until it gives false. Then the third part was the update expression. Update expression is also same as the text expression. मीन्स ये भी मल्टीपल बार एग्जीक्यूट होगा जब तक कि टेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स ना हो. इट इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स और रिपीटेडली until the condition becomes false or the test expression becomes false. Okay, and the last one was the body. And body में हमने खुद ही लिखा हुआ था कि body of the loop is the part of the loop which is executed repeatedly until the text expression becomes false. तो इसका भी वही है, same as test and update, कि it is also executed repeatedly until the condition becomes false. Okay, so these are the four elements which are इनसाइड ईच एंड एवरी लूप. ये चारों के चारों एलिमेंट्स हर लूप के अंदर होंगे. और बेस्ड ऑन द पोजीशन वेयर दे आर यूज्ड, लूप्स तीन तरह के होते हैं, जिनमें से सबसे पहला लूप था द फॉर लूप. ओके, ये सबसे पहला लूप है, द फॉर लूप, एंड इट इज़ द ईजीएस्ट टू अंडरस्टैंड इन ऑल द थ्री लूप. सबसे ईजी ये होता है अंडरस्टैंड करने के लिए भी. एंड हाउ इट इज यूज्ड, सिंटैक्स इसका क्या होता है, वी राइट द फॉर स्टेटमेंट ब्रैकेट, देन इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशंस, देन वी राइट टेस्ट एक्सप्रेशंस और कंडीशन, एंड देन अपडेट एक्सप्रेशंस, अपडेट एक्सप्रेशंस. ओके, एंड आफ्टर दैट करली ब्रैकेट, और उसके अंदर होता है बॉडी ऑफ द लूप विच कंसिस्ट्स ऑफ न्यूमरस स्टेटमेंट्स एंड देन लूप एंड्स. ये सिंटेक्स होता है फॉर लूप का. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ अ फॉर लूप वर्क्स. ओके, वर्किंग ऑफ अ फॉर लूप. एंड फॉर वर्किंग वी विल टेक एग्जाम्पल, लाइक हमने ऐसा लिखा, क्लास टेस्ट पब्लिक वॉइड मेन इंटीजर आई फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर सिंपली लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर प्रिंट हो रही है आई की वैल्यू. ओके, ये एक सिंपल सा कोड है. हम लोग देखते हैं कैसे वर्क करता है इसमें. ओके, सो बिफोर वर्किंग लेट मी शो यू अ फ्लो डायग्राम लाइक हाउ इट वर्क्स. लूप में सबसे पहले, फॉर लूप में जब एंट्री होती है तो हमने पढ़ा था इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन जो था वो बिगिनिंग ऑफ द लूप में चलता है. ओके, तो जब फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इनसाइड द लूप इज द इनिशियलाइजेशन. ओके, उसके बाद व्हाट हैपेंस, वी डू कंडीशन चेकिंग. ओके, कंडीशन चेकिंग मीन्स टेस्ट एक्सप्रेशन जो इनिशियलाइजेशन के बाद है. ओके, कंडीशन चेकिंग. अब कंडीशन चेक कर रहे हैं तो कंडीशन हो सकता है या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा.
ओके, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा? अगर कंडीशन ट्रू आता है तो उस केस में वी गो इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। ओके, बॉडी ऑफ द लूप, और बॉडी ऑफ द लूप पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होने के बाद हम अपडेट एक्सप्रेशन पर जाते हैं। ओके, एंड अपडेट करने के बाद हम दोबारा से कंडीशन को चेक करते हैं, मीन्स यहाँ से हम दोबारा कंडीशन को चेक करेंगे। ये पैटर्न समझिए, ठीक है। जब तक ट्रू होगा तब तक ये वाला लूप इसमें चलता रहेगा, और जो ही कंडीशन चेकिंग फॉल्स होती है वी गो आउट ऑफ द लूप, or वी कैन से वी एग्जिट, ऐसे एग्जीक्यूट होता है। तो इसी तरीके से इस डायग्राम को देखते हुए हम ऊपर वाले कोड को समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले i इक्वल्स टू 0 की वैल्यू इनिशलाइज होगी, i की वैल्यू 0 इनिशलाइज होगी, जो कि यहाँ लिखा हुआ था इनिशलाइजेशन। उसके बाद क्या है? कंडीशन चेकिंग। कंडीशन चेकिंग इसके बाद आता है, तो यहाँ होगा i इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो हम कहाँ जाते हैं? बॉडी में। ओके, तो फॉर लूप की बॉडी में आए। फॉर लूप की बॉडी में क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है। अगर ये हमारा डेस्कटॉप है, आई की वैल्यू प्रिंट होगी जो है 0। ओके, बॉडी के बाद क्या हो रहा है? अपडेट। बॉडी खत्म हुआ तो यहाँ से गए अपडेट पर, अपडेट हुआ आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस मीन्स आई की वैल्यू 0 से हो गई 1, आई की वैल्यू 0 से हो गई 1। अब जब आई की वैल्यू 1 हुई तो अपडेट के बाद दोबारा से हम आ रहे थे कंडीशन चेकिंग पर, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है। और जब ट्रू है तो फिर बॉडी के अंदर जाके आई की वैल्यू प्रिंट किया हमने, जो आया 1। देन अपडेट, अपडेट में प्लस प्लस हो गया तो 1 से हो गया वैल्यू 2। फिर से कंडीशन चेक किया, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो प्रिंट कर रहे हैं बॉडी में आकर, फिर अपडेट कर रहे हैं तो आई की वैल्यू हो जा रही है 3। कंडीशन चेकिंग, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू। ट्रू है तो आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है जो कि 3। ओके, देन अगेन अपडेट, आई की वैल्यू हो रही है 4। कंडीशन चेकिंग, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू है। ट्रू होने पर क्या हो रहा है? प्रिंट। देन अगेन अपडेट, हो गया 5। 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई की वैल्यू 5 प्रिंट हुई। 5 प्रिंट होने के बाद फिर से अपडेट हुआ 6। अब कंडीशन देखिए, 6 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन फॉल्स हुआ, हम लूप के बाहर आ गए। ओके, तो ये लूप पूरा एग्जीक्यूट हुआ और हमने ये वैल्यू प्रिंट हो गई 0 से 5 तक। ओके, सो लूप में होता यही है, अगर ऐसा लिखा हो फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस, और इसमें लिखा हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, वही सेम कोड है बट हम यहाँ एरो से देखते हैं। सबसे पहले इनिशलाइज होगा। ओके, इनिशलाइज के बाद क्या हो रहा था? कंडीशन चेक हो रहा था। ओके, ये पहले हुआ। दूसरे नंबर पे कंडीशन चेक। कंडीशन चेक अगर ट्रू हो रहा है तो हम बॉडी में आ रहे हैं, ये अगर ट्रू है तो बॉडी में आ रहे हैं। ओके, बॉडी में सारा एग्जीक्यूट होगा जो भी है, और बॉडी ख़त्म होने के बाद हम जा रहे हैं अपडेट पर। ओके, ये 3rd पॉइंट है, ये 4th पॉइंट है। अपडेट, अपडेट के बाद दोबारा से कंडीशन चेक, 5th पॉइंट, और ये इसमें रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। ओके, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। ये 6 है, कब? फॉल्स पर। तो क्या होगा? सबसे पहले 1 चलता है, 1 के बाद 2 था, 2 के बाद बॉडी में आ रहे थे, बॉडी से अपडेट कर रहे थे, अपडेट के बाद हम 5वां पॉइंट था, कंडीशन देख रहे थे। ठीक है, और कंडीशन के बाद से ये वाला पैटर्न दोबारा चेक हो रहा था। कंडीशन जो था यही है 2 नंबर, जब तक कि ये
ट्रू होगा, सॉरी, जब तक ये ट्रू होगा ये वाला चलता रहेगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो यहाँ से नंबर 6 आ जा रहा है फॉल्स होने पर। ओके, तो इस वाले फिगर से हम समझ सकते हैं, मीन्स ये वाले पार्ट ऑफ कोड से, कि कैसे लूप चलता है। इनिशियलाइज, अप, कंडीशन बॉडी अपडेट, कंडीशन बॉडी अपडेट, कंडीशन बॉडी अपडेट, कंडीशन बॉडी अपडेट, ऐसा चलता रहेगा। और जब भी फॉल्स हुआ आउट ऑफ द बॉडी, ऐसे लूप का एग्जीक्यूशन होता है फॉर लूप के अंदर। और देखिए अपडेट में हम लोग सिंपली प्लस प्लस कर रहे थे, मीन्स एक एक वैल्यू बढ़ रहा था। ओके, एक एक वैल्यू बढ़ा था, 0 से स्टार्ट हुआ था 5 तक गया, एक एक वैल्यू बढ़ रहा था। तो उस केस में हमने आई को वैल्यू 0 लेस देन 5 और प्लस प्लस किया था। अब सपोज हमें ये प्रिंट करना हो 0 3 6 9 12 15 18। ओके, 0 से 18 तक प्रिंट करना है, 3 की मल्टीपल। तो देखिए स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से, जिससे स्टार्ट करना है हम लूप वहीं से स्टार्ट करते हैं। इंटीजर आई की वैल्यू 0, कहाँ तक जाना है, वी हैव टू गो टिल 18। सो यहाँ पर कंडीशन क्या लिखेंगे, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 18, तो ये 18 तक जाएगा। अपडेट देखिए कैसे हो रहा है, 0 के बाद 3 बढ़ रहा है +3, फिर +3, फिर +3। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, आई प्लस इक्वल्स टू 3, हमने शॉर्ट हैंड असाइनमेंट पढ़ा था, आई प्लस इक्वल्स टू 3 का मतलब होता है आई इक्वल्स टू आई प्लस 3। तो अगर आई की वैल्यू पहले 0 थी तो +3 होकर 3 हो जाएगी, फिर +3 होकर 6। तो देखिए ऐसा हो रहा है। ओके, हमने ऐसा कर दिया। और उसके बाद क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ देखिए ये सारे एक लाइन में प्रिंट हो रहा है। जब एक लाइन में प्रिंट होते हैं तो हम यहाँ प्रिंट लिखते हैं, आई की वैल्यू प्रिंट किया और एक स्पेस लगा दिया, ये सिंपल सा कोड किया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, कंडीशन ट्रू हुआ, 0 प्रिंट कर दिया, देन स्पेस लगाया, फिर आई की वैल्यू +3 हुई तो 0 से +3 3 हो गई, कंडीशन ट्रू है तो 3 प्रिंट किया, फिर 6 हो गई तभी भी ट्रू होगा, 9 पे भी ट्रू, 12 पे, 15 पे, 18 पे। 18 के बाद आई की वैल्यू 21 होगी, कंडीशन फॉल्स हुआ, हम बाहर आ जाएंगे और इससे हमारा 3 के मल्टीपल्स प्रिंट हो गए। ओके, ऐसे हम लोग लूप्स को, फॉर लूप का यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए। ऐसे ही मान लीजिए एक और प्रोग्राम ऐसे ही है कि प्रोग्राम कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स 1 से 20 तक सारे होते हैं, मीन्स 1 2 3 4। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से 20 तक जाना है। और कैसे जाना है, एक एक बढ़ के। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से, तो हमने लिखा फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 1। ओके, 20 तक जाना है, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 20 और एक एक बढ़ना है, तो हमने लिखा आई प्लस प्लस, तो इसे एक एक बढ़ेगा। और प्रिंट करना है तो हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई और आगे स्पेस लगा दिया। सो व्हाट इट विल डू, 1 से 20 तक एक एक बढ़ के, मीन्स 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे 20 तक सारे के सारे नंबर्स प्रिंट कर देगा। वही हमें प्रोग्राम में करना भी था ऐसे। देन अब ऐसे ही एक और प्रोग्राम देखते हैं कि हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5 प्रिंट करना है। मल्टीप्लिकेशन टेबल मीन्स ऐसे प्रिंट हो, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और ऐसे 5 10 तक जाए। ये मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। तो कैसे किया जाएगा, तो अगर इसमें भी देखा जाए तो देखिए 1 से 10 तक तो हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं। ओके, 5 का मल्टीपल हो रहा है, तो हमने इसमें क्या किया, एक नम लिया और नम में हमने रख लिया 5। ओके, अब फॉर लूप स्टार्ट किया, 1 से 10 तक के मल्टीपल लिखने हैं 5 के, तो आई की वैल्यू 1 से 10 तक चला लिया,
ओके। और प्रिंट कैसे करना है नेक्स्ट लाइन में, तो हमने यहाँ किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और क्या प्रिंट करना है एग्जैक्टली जो प्रिंट करना है वो करते हैं। पहले 5 का है, नम में है, तो हमने लिखा नम, उसके बाद स्टार का सिंबल है, तो स्टार का सिंबल ऐसे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 से 10 तक जो आई जा रहा है, तो यहाँ प्रिंट किया हमने आई, फिर इक्वल्स टू का सिंबल है, तो इक्वल्स टू का सिंबल आ गया। और उसके बाद ये मल्टीपल है, मतलब 5 इंटू 1 5 इंटू 2, तो 5 है नम में और 1 टू आई में है, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा नम इंटू आई की वैल्यू। ये लूप बंद हो गया और ये हमने एंड कर दिया ये प्रोग्राम। तो देखिए क्या होगा, नम में वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ से, नम मीन्स 5 इंटू आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 होगा, फिर इक्वल्स टू नम इंटू आई मीन्स 5 इंटू 1, प्रिंट किया 5, फिर आई प्लस प्लस होकर आई की वैल्यू 2 हो गई, तो नम में है 5 स्टार, आई में 2 है, प्रिंट क्या करेगा 5 इंटू 2 नम इंटू आई, किया 10, फिर ऐसे ही आई की वैल्यू प्लस प्लस होकर 3 होगी, तो 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15, ऐसा चलता रहेगा और लास्ट में 5 इंटू 10 भी कंडीशन ट्रू होगा, तो 5 10 जा 50 प्रिंट किया, फिर प्लस प्लस होकर 11 हुआ, और यहाँ जब आएगा तो 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गए और हमें जो प्रिंट करना था वो आउटपुट हमें मिल गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप का यूज़ किया जाएगा हमेशा जो भी प्रिंट करना है रिपीटेडली वो करने के लिए। अभी तक सारे में हम लोग प्लस प्लस कर रहे थे, इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर प्रोग्राम हो टू प्रिंट फर्स्ट 20 नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर, तो देखिए पहले 20 नंबर की बात करें, इट मीन्स कि 20 से लेकर 1 तक प्रिंट करना है। तो जहाँ तक हमने फॉर लूप पढ़ा था, जिससे स्टार्ट करना है वो हम आई में मानते हैं, तो हमें 20 से स्टार्ट करना है, तो हमने आई में माना 20, कहाँ तक जाना है 1 तक, तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यहाँ लगाएंगे, क्योंकि हम बड़े से छोटे में आ रहे हैं, तो आई की वैल्यू हमेशा 20 19 तो ग्रेटर होगा 1 से। और क्या कर रहे हैं कि एक एक डिक्रीज़ हो रहा है, जब डिक्रीज़ होगा तो हम आई माइनस माइनस करके और यहाँ कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई, ये क्या करेगा, पहले 20 प्रिंट किया, फिर माइनस माइनस करके 19 हो गया, और 19 भी 1 से बड़ा ही है तो 19 प्रिंट करेगा, 18 17 16 ऐसे जाते जाते 1 तक प्रिंट करेगा, फिर माइनस माइनस हो के आई की वैल्यू 0 होगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे, तो हमें 20 से लेकर 1 तक के सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। ओके, ऐसे भी हो सकता है कि प्रोग्राम करना है टू प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो वी नो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स मतलब 2 से लेके 2 4 6 ऐसे 20 तक जाना है, 2 से 20 तक जाना है, और बीच में गैप 2 2 का है, तो 2 से जाना है 20 तक, तो आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट किया, लेस देन इक्वल्स टू 20 तक गया, और गैप 2 2 का है, मतलब अपडेट जो होगा वो 2 2 से होगा, तो आई प्लस इक्वल्स टू 2, और क्या कर देंगे हम प्रिंट कर देंगे आई को और स्पेस लगा देंगे। तो जैसे इसे देखा जाएगा तो 2 से स्टार्ट किया 2, फिर प्लस 2 होके 4, फिर प्लस 2 होके 6 8 10 ऐसे 20 तक जाएगा, फिर प्लस 2 होके जब 22 होगा तो कंडीशन फॉल्स होके बाहर आ जाएगा, तो ये भी सिंपली हो जाएगा। आफ्टर दैट लेट्स सी कि अगर हमें ये प्रिंट करना हो ए डबल ए ट्रिपल ए 4 टाइम्स से 5 टाइम्स से, ठीक है, और इसमें हमें स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन करना है। कॉन्कैटिनेशन मतलब स्ट्रिंग को एक दूसरे में बस ऐड करते जाना है। तो देखिए हमें 5 बार प्रिंट करना है, 5 लाइन। ओके, तो
यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग str में हमने a रख दिया, ठीक है। a से स्टार्ट करना है प्रिंट करना, तो str में a रखा। अब जब 5 बार करना है तो हमने लूप को 1 से 5 तक चला दिया, मीन्स इंटीजर i की वैल्यू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस, ठीक है। और देखिए हर बार a को मीन्स str को प्रिंट करेंगे और str में a जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println str प्रिंट हुआ और str की वैल्यू में str प्लस a जुड़ जाएगा। अगर ऐसे करें तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। str में a से स्टार्ट किया, ठीक है, ये होगा str में a से स्टार्ट किया, फिर i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, 1 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है तो str की वैल्यू प्रिंट किया, तो पहला प्रिंट किया a, ओके, ये हो गया। अब str में a के बाद एक और a जुड़ गया, तो ये हो गया डबल a, ठीक है। अब होगा i प्लस प्लस, i प्लस प्लस हो के i की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो लूप में आएंगे, str की वैल्यू प्रिंट किए जो कि डबल a है, डबल a प्रिंट हुई और str में एक और a जुड़ गया, तो अब str ट्रिपल a हो गया। फिर i प्लस प्लस, i की वैल्यू हुई 3, कंडीशन ट्रू है, str की वैल्यू प्रिंट हुई जो ट्रिपल a थी, ये प्रिंट हुई, और फिर str में एक और a जुड़ गया, तो यहाँ से हो जाएगा 4 बार a, ठीक। फिर कंडीशन पे जाएंगे, सॉरी अपडेट पे, अपडेट हुई 4, कंडीशन चेकिंग ट्रू है, बॉडी में आएंगे, तो बॉडी में क्या है, प्रिंट करो और a जोड़ो, तो प्रिंट किया 4 बार a और एक और a जोड़ के 5 बार a कर दिया। उसके बाद अपडेट, i की वैल्यू हुई 5, कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में आएंगे तो प्रिंट करेंगे a जोड़ेंगे, तो प्रिंट किया 5 बार और हमने इसमें a जोड़ के 6 बार a कर दिया, ये str हो गया। अब i प्लस प्लस, i प्लस प्लस की वैल्यू 6 हुई, कंडीशन चेक करेंगे 6 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5, फॉल्स, हम लूप से बाहर आ गए और देखिए हमारा जो पैटर्न था ये पैटर्न प्रिंट हो गया, ओके। तो ऐसे प्रोग्राम्स को इस तरह से कर सकते हैं कि प्रिंट द पैटर्न। ये वाला। ऐसे ही एक और सिंपल प्रोग्राम देखते हैं कि हमें फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर प्रिंट करना है। लाइक अगर नंबर है 6 तो 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मीन 6 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ओके। सो लेट्स सी कि अगर नंबर यूज़र ने इनपुट किया है मेन फंक्शन में, पब्लिक वॉइड मेन इंट नम, तो हमें इसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो ये चीज़ देखिए रिपीटेडली जा रहे हैं 6 से 1 तक माइनस माइनस करते हुए, तो हमें फैक्टोरियल स्टोर करना है, तो हम एक इंटीजर फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम रख देंगे पहले से 1, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब मल्टीप्लाई करना होता है तो जो वेरिएबल में रखना होता है हम उसमें 1 रखते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, ओके। अब फॉर लूप स्टार्ट हुआ 6 से, अगर नम की वैल्यू 6 है तो 6 से स्टार्ट होगा, तो अगर नम में जो वैल्यू है तो आई की वैल्यू नम से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी 1 तक, तो आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और हर बार एक एक माइनस माइनस होते रह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट में फैक्ट स्टार आई, ठीक है। ये होने के बाद हम क्या प्रिंट कर देंगे, फैक्टोरियल ऑफ जो भी नंबर है इस, और वो होगा फैक्ट में। सो अगर ऐसा कोड लिखा, मान लीजिए यूज़र ने नम में 6 ही दिया, नम में दिया 6, तो हमने क्या किया, फैक्ट बनाया, फैक्ट में लिखा है 1, ओके। अब आई की वैल्यू नम से स्टार्ट हुई, आई की वैल्यू 6 से स्टार्ट होगी, ग्रेटर देन 1, 6 इज ग्रेटर देन 1, ऑब्वियसली इट इज़, तो बॉडी में आएंगे, बॉडी में क्या हो रहा है, फैक्ट इंटू आई, फैक्ट में है 1 इंटू आई, आई में 6 है तो 1 इंटू 6 हो गया 6, अब आई माइनस माइनस 5, कंडीशन ट्रू है तो फैक्ट में 6 के बाद 5 मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 6 इंटू 5 हो गया 30,
देन i माइनस माइनस 4, 30 में 4 मल्टीप्लाई होगा 120, फिर i माइनस माइनस होकर 3 हो गया तो ये हो जाएगा 360, फिर माइनस माइनस होकर 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 720, मल्टीप्लाई होते जा रहा है, फिर 1 होगा तो ये 720 ही रह जाएगा क्योंकि 720 इंटू 1 720। देन i माइनस माइनस की वैल्यू 0, कंडीशन फॉल्स होगा, बाहर आएंगे। लूप के बाहर आने के बाद उसके जस्ट नेक्स्ट पे हमने लिखा है फैक्टोरियल ऑफ नम, तो ये क्या करेगा, फैक्टोरियल ऑफ नम में 6 है, 6 इज फैक्ट में 720 है, तो फैक्टोरियल ऑफ 6 6 720। तो ऐसे फॉर लूप, मतलब सिंपल वाले जो फॉर लूप लगाते हैं सिंगल, उसके प्रोग्राम्स ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।